জুন থেকে ইপিএফও 3.0 নিয়ে আসছে এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন। তার ফলে প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা, কেওয়াইসি আপডেট করার মতন কাজগুলো কিন্তু আরও সহজতর হয়ে যাবে। কোনো ক্লেমের ক্ষেত্রে সময় কম লাগবে। সেই সঙ্গে পিএফ অ্যাকাউন্টে আরও দ্রুত লেনদেনের জন্য এটিএম কার্ডের মতো কার্ড চালু করা হতে পারে। শ্রম এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়ার তিনি জানাচ্ছেন যে নতুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সদস্যদের টাকা তুলতে, অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে তা জানতে এবং আরও সহজে সমাধান করবে সমস্যার। তিনি আরও বলছেন যে ইপিএফও 3.0 চালু করার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সদস্যদের জন্য ফান্ড অ্যাক্সেস সহজ করা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থাকে উন্নত করা। তিনি আরও বলছেন এই নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে সহজেই টাকা তুলতে পারা যাবে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের প্রক্রিয়াটিকে আরও শক্তিশালী এবং অ্যাক্সেসযোগ্য করার জন্য স্ট্রিমলাইনও করা হচ্ছে। সদস্যদের তাদের অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যে কোনো সমস্যা জানাতে এবং সমাধান করারও অনুমতি দেন তিনি আরও বলেন যে এখনও পর্যন্ত 50% অভিযোগের সমাধান করা হয়েছে। ইপিএফও 3.0 চালু হওয়ার পর আপনার পিএফ দাবি করা খুব সহজ হতে চলেছে। এর ফলে এখন ইপিএফও সদস্যরা এটিএম মেশিন এবং ইউপিআই এর মাধ্যমে পিএফের টাকা পর্যন্ত তুলতে পারবেন। এটি চালু হওয়ার পর দেশের 9 কোটিরও বেশি মানুষের সুবিধা পাবেন। 2025 সালের জুন মাসটি আধার কার্ড ব্যবহারকারীদের পাশাপাশি এফডি বিনিয়োগকারীদের জন্য ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই মাসেই ঘটতে থাকা অন্যান্য পরিবর্তন সম্পর্কে বলতে গেলে ইউআইডিএআই কর্তৃক আধার ব্যবহারকারীদের বিনামূল্যে আধার কার্ড আপডেটের সময়সীমা এই মাসের 14 তারিখে শেষ হচ্ছে এবং তারপর এই কাজের জন্য 50 টাকা করে নির্দিষ্ট ফি দিতে হবে। এছাড়াও জুন মাসে অনেক ব্যাংক স্থায়ী আমানত এবং ঋণের সুদের হার পরিবর্তন করতে পারে, কারণ রিজার্ভ ব্যাংক রেপো রেট কমিয়েছে। তাই এনসিপিসিআই ইউপিআই এই সম্পর্কিত একটি নতুন নিয়ম বাস্তবায়িত হতে চলেছে, যার অধীনে ইউপিআই পেমেন্ট করার সময় ব্যবহারকারী শুধুমাত্র আলটিমেট বেনিফিশিয়ারি অর্থাৎ আসল প্রাপকের ব্যাংকিং নাম দেখতে পাবেন। কিউআর কোড বা সম্পাদিত নাম সেখানে আর দেখা যাবে না। এই নিয়ম 30 জুনের মধ্যে সমস্ত ইউপিআই অ্যাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া তিনি আগে কি বলেছিলেন শোনাবো আপনাদের। ईपीएफओ के पार्टनर बनने के लिए 15 बैंकों को मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में बैंकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ईपीएफओ रिजर्व बैंक के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा फंड है, जिसकी 26 लाख करोड़ की वर्थ है। यह ऑर्गेनाइजेशन में 8 करोड़ से अधिक सदस्य है। 78 लाख से अधिक पेंशनर है और डे बाय डे ईपीएफओ अपने सेल्फ में बहुत बड़ा बदलाव कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप हम इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि एक बैंक में जिस टाइप का गवर्नेंस हो, इस टाइप का गुड गवर्नेंस हमारे ईपीएफओ में आए। इस दिशा में पिछले 1 वर्ष में कई एफर्ट करा गया है और ये एफर्ट का नतीजा है आज हमारा ईपीएफओ 201 का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है।
हमारा आईटी प्लेटफॉर्म रोबस्ट बना है और आउटपुट ये है कि पिछले वर्ष में 4.5 करोड़ क्लेम सेटल हुए थे, वो इस साल केवल पिछले 3 महीने में ज़्यादातर रिफॉर्म हुआ है। 6 करोड़ क्लेम सेटल करके ईपीएफओ ने एक नया इतिहास भी बनाया है, जो पिछले साल से 35% अधिक है। वैसे ही वर्तमान समय में जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, ईआई का यूज भी वर्तमान समय में सामान्य बनने लगा है। वैसी स्थिति को लेते हुए ईपीएफओ ने ऑटो सेटलमेंट पर भी काम करा है और ऑटो सेटलमेंट में बहुत बढ़ोतरी हुई है। जो पहले होता था उसमें से 160% अधिक ऑटो क्लेम सेटलमेंट करके ईपीएफओ ने एक बहुत अच्छा काम करा है। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকের সচিব সুমিতা দাওরা কি বলেছিলেন শোনাবো। देखिए, ईपीएफओ में इस वक्त 7.5 करोड़ के लगभग एक्टिव मेंबर्स हैं और ये मेंबर्स अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट ईपीएफओ के साथ मेंटेन करते हैं और काफ़ी हद तक काफ़ी लोग जो एलिजिबल हैं अपना पेंशन का भी कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो जो प्रोविडेंट फंड है उसके क्लेम्स हमको जब आते हैं, वो क्लेम्स को कैसे हम ऑटोमेट करें, सिंप्लीफाई करें प्रोसेसेस को, उस पर हमने बहुत काम किया है और काफ़ी कुछ तो हम टाइम टू टाइम बताते रहे हैं कि हमने ऑटोमेट करे हैं क्लेम्स अप टू 1 लाख, हमने सिंप्लीफाई करे हैं प्रोसेसेस, हमने काफ़ी हद तक सेल्फ करेक्शन करा है, मैंडेटरी चीज़ें कई जो अननेसेसरी थी उनको हमने रिमूव करा है और पिछले 1 साल के अंदर हमने जो आईटी सिस्टम है, डेटाबेसेस को इंटीग्रेट करा है। तो इससे जो क्लेम प्रोसेस है वो अब अप टू 3 डेज हो गया है और रिड्यूस हो गया है और इसको हम और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जिसके लिए जो हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस अब बना है आईटी का, और ये पहली बार ईपीएफओ में हमने सेंट्रलाइज करा है डेटाबेस। ईपीएफओ के 120 से ज्यादा जितने भी डेटाबेसेस थे सबको हमने इंटीग्रेट करा है और अब इसके ऊपर हम यूपीआई को लाना चाहते हैं। इसके लिए हमारी मीटिंग्स हो गई हैं। एनपीसीआई की तरफ से ये एक अच्छा सुझाव आया है और ये सुझाव हमने एक रिपोर्ट बनाकर अब ईपीएफओ को दी है मंत्रालय से कि यूपीआई को अब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हमारा जैसे हो गया है और इसकी जो इम्प्रूवमेंट अप्रैल में टेस्टिंग सब कंप्लीट हो जाएगा, तो मई के महीने में टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई हम उम्मीद कर सकते हैं कि यूपीआई का फ्रंट एंड हो। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলা। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।